Hello students. So after completing the measurement part of the chapter, in which mainly we have covered the measurement of length, we now start the next part of the chapter, that is errors in measurement. So students, please understand what is this error. Error means uncertainty. Actually what happens, the measurement which we do is not error free. There is some uncertainty. Suppose we measure the length of a rod, then it is calculated as 1.2 meter. So exactly it may not be 1.2 meter, it may have some plus or minus वैल्यू विच कैन बी एडिड और सब्ट्रैक्टेड. सो एरर्स होती क्या हैं? एरर्स बिफोर स्टार्टिंग एरर वी शुड टेल यू व्हाट इज प्रिसीजन. सो प्रिसीजन इज द ability of an instrument which tells how close the observations are in a measurement. It depends on the sensitivity of the instrument. Okay, suppose in an example, I give you one example. We measure three values. This is 0.1 centimeter, 0.01 centimeter. Okay, so this 0.01 centimeter is more precise value because it is measured 2 डिजिट्स आफ्टर डेसिमल. डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक इसको मेजर किया गया है, तो ये ज़्यादा प्रिसाइज वैल्यू है. ऐसे ही अगर मैं दो वैल्यू लेता हूँ, एक 1.56 और दूसरी 1.5, तो 1.56 इज मोर प्रिसाइज. मतलब प्रिसीजन का मतलब क्लियरली आप समझें, यू शुड अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ प्रिसीजन कि डेसिमल के जितने डिजिट तक किसी वैल्यू को मेज़र किया गया है वो उतनी ही ज़्यादा प्रिसाइज मेजर्ड वैल्यू होगी. उसके बाद जो सेकेंड टर्म आती है वो आती है एक्यूरेसी. सो दीज आर द टू टर्म्स, प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी, विच वी नीड टू अंडरस्टैंड बिफोर स्टार्टिंग द एरर्स इन मेजरमेंट. एक्यूरेसी क्या होती है? हम एक पर्टिकुलर वैल्यू को ट्रू वैल्यू एज्यूम करते हैं. सो जो मेजर्ड वैल्यू होती है वो ट्रू वैल्यू के कितना क्लोज है. सो जो वैल्यू ट्रू वैल्यू के सबसे ज़्यादा क्लोज होती है, दैट इज called more accurate value, or that is the accuracy. It means how close the measured value and true value with respect to each other. So precision measures or tells to what resolution or limit a quantity is measured. So this example have been already discussed. This accuracy का example हम देखते हैं. Suppose true value of a quantity is 3.9 and its measurement taken by two boys are 3.6 and 3.8. So 3.8 is more close to this true value 3.9. So 3.8 is more accurate and this is called accuracy. Now come to the main topic which is error. तो error क्या होता है? जो measurement हम करते हैं उसकी measured value और true value का जो difference होता है, that is called the errors in measurement. So error in the measurement of a physical quantity is the difference between true value and measured value of that physical quantity. There are three types of errors. Okay, number one is systematic error. What is the systematic error? These are the errors which occur according to a definite pattern. The causes of these errors are known. एक पैटर्न में तो causes क्या हो सकते हैं? Due to imperfection in instrument, due to imperfection in experimental method और technique, personal reason हो सकते हैं, errors due to external cause हो सकती है. इसके बाद random error. Random error क्या होती है? जिसकी random error is the error which is due to unpredictable conditions in experiment. We cannot predict these conditions, we cannot have an idea. Next is gross error. It arises on account of carelessness of an observer. So in every measurement error is written with plus or minus sign because जो actual value है, जो true value है, वो measured value से कम भी हो सकती है और ज़्यादा भी हो सकती है. तो suppose length of a rod is 1.2 centimeter and in this error is 0.1 centimeter. So it is written with plus minus L plus minus delta at 1.2 plus minus 0.1 centimeter. This is how a measurement, a physical quantity is written along with the error plus minus sign के साथ. So mathematically we are asked to calculate the three different types of error. Let me explain how to find these errors. So one is absolute error. तो ये absolute error क्या होता है? Suppose हमने किसी physical quantity A को measure किया n times. So these A1, A2, A3 and so on up to AN are the measured values. तो हम क्या करते हैं? इसका लेते हैं मीन. तो ए मीन AM इज इक्वल टू A1 प्लस A2. दिस इज सिंपली अर्थमेटिक मीन. सो दिस मीन वैल्यू
इज कॉल्ड द ट्रू वैल्यू। अब ट्रू वैल्यू का ऑब्वियसली डिफरेंस हो सकता है, जो ट्रू वैल्यू ए एम है वो A1 A2 A3 से डिफरेंट हो सकती है, तो इनका जो डिफरेंस होता है उसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट एरर। सो जो फर्स्ट मेजरमेंट था A1 उसमें एब्सोल्यूट एरर A1 एब्सोल्यूट एरर इन A1 इज इक्वल टू डेल्टा A1 इज द डिफरेंस ऑफ A1 एंड AM। ऐसे ही A2 में क्या हो जाएगी, A2 और AM का डिफरेंस एंड सो ऑन। सो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट द एब्सोल्यूट एरर। नेक्स्ट इज मीन एब्सोल्यूट एरर। तो अगर जितनी भी ये एब्सोल्यूट एरर्स हैं इनका हम मीन ले लेते हैं तो दीज आर कॉल्ड द मीन एब्सोल्यूट एरर। और अगर इस मीन एब्सोल्यूट एरर को मीन वैल्यू से हम डिवाइड करते हैं तो दैट इज कमिंग एज रिलेटिव एरर। इफ रिलेटिव एरर इज मल्टीप्लाइड बाय 100 देन इट बिकम्स द परसेंटेज एरर। सो इस तरह से हम इन ए मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी वी फाइंड 3 टाइप्स ऑफ एरर्स। वन इज एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर, और एट द सेम टाइम वी कैन कैलकुलेट द परसेंटेज एरर। अब प्रॉब्लम ये आती है कि भाई अगर कॉम्बिनेशन है, सपोज कोई फिजिकल क्वांटिटी है और वो दो का कॉम्बिनेशन है, जैसे मान लो कोई ए क्वांटिटी है उसमें एरर डेल्टा ए हो गई, बी क्वांटिटी में डेल्टा बी हो गई, तो इनका जो सम होगा x इज इक्वल टू ए प्लस बी, उसमें भी तो एरर होगी ना, क्योंकि अगर इंडिविजुअल एरर्स हैं तो एडिशन में भी एरर होगी। तो सिंपली जो एरर होती है इन द सम ऑफ टू फिजिकल क्वांटिटीज द एरर्स आर द सम ऑफ इंडिविजुअल एरर्स डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। तो यहाँ पर आपको ये समझ में इससे आएगा, इन क्लास 10th यू हैव डन इन इलेक्ट्रिसिटी द कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। R1 कोई रेजिस्टेंस है 100 प्लस माइनस 3, आपने कोई रेजिस्टेंस मेजर किया उसमें 3 ओम का एरर आया और मेजर्ड वैल्यू 100 ओम है। दूसरा मेजर किया 200 प्लस माइनस 4, तो टोटल रेजिस्टेंस एरर के साथ निकालना है तो R इज इक्वल टू R1 प्लस R2, सो 100 प्लस 200 300। और अब ये फॉर्मूला सम की एरर का क्या होता है, डेल्टा R इज इक्वल टू डेल्टा R1 प्लस डेल्टा R2, 3 प्लस 4 प्लस माइनस 7। सो दिस इज हाउ वी एक्सप्रेस द रिजल्ट विद एरर। इसी तरह से डिफरेंस में x इज इक्वल टू ए माइनस बी, वैसे तो जो डिफरेंस में एरर होती है वो डेल्टा ए माइनस डेल्टा बी इंडिविजुअल एरर का डिफरेंस होती है, बट वी ऑलवेज लुक फॉर मैक्सिमम पॉसिबल एरर। सो मैक्सिमम पॉसिबल एरर में हमेशा पॉजिटिव साइन आता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू शुड रिमेंबर, वी ऑलवेज लुक फॉर मैक्सिमम पॉसिबल एरर एंड मैक्सिमम पॉसिबल एरर कंसिस्ट ऑफ प्लस साइन, कभी भी नेगेटिव साइन हम मैक्सिमम पॉसिबल एरर में यूज नहीं करते। सो next time we will continue from the error in product or multiplication. Okay, thank you and thank you so much.